Hello everyone, this is Vishakha Dada coming up next session of Current Affairs. The session is brought to you by AQBI. So let's move ahead. The first session is the COVID-related news. Chennai has taken the help of the corporations to actually take the vaccine to door to door. So this is like a very good example of how the government along with civil society can achieve so much. Like if I have to give an international example, which you can quote anywhere, is there is example of like Costa Rica. Now Costa Rica was able to manage its multidimensional poverty by 40%. Like it reduced the poverty by 40% by engaging with civil society organization. When like non-profit organization become part of it, the Costa Rica was able to reduce its multidimensional poverty by 40%. And this is like case study with which World Economic Forum was running on its platform. So like with the example of World Economic Forum, you can quote how with like civil society engagement with government, or the government when actually bring the civil society and its initiative, they're able to achieve a lot. तो like so this is also good example कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि Chennai government has like taken the help of corporation and other resident welfare organization like for the vaccine camp, and with the simple help almost like 40,000 vaccine per day they are able to deliver, which is good. Like 40,000 like 40,000 vaccine per day is a very good target. So like apni like make a notebook of like case study, and even if you're like able to write one case study a day, like or like you're able to solve like one of this in this way, you'll be able to like fetch a very good marks, because ethics, the one thing that is going to give you an edge is like very good example, like how like you differentiate yourself from other. And even not in GS paper 2, it will help you in even GS paper like GS paper 4 and 2 both, आपको इसमें benefit होगा. Moving ahead is like small news. The Delhi government may start unlocking process from May 31 because in last few days like हमने पहले ही notice किया था कि Delhi government actually got its peak around April 28, 29 somewhere. So the cases are dipping right now. So the Delhi government want the economy to also recover, but like the unlocking process will be much strict and like it will be slow and steady unlocking. Moving ahead is some political news. In the political section, the Supreme Court was interpreting Section 304B, which deals with the dowry death, and it wanted to interpret the section liberally. It up the like what it said was कि so far this section was not interpreted liberally. And in fact it is going to talk about, it talks about definition कि इसकी definition क्या है, and then उसके बाद this will talk about how various part of the definitions उनको liberally interpret नहीं किया गया था. Interpretation of the Supreme Court, it is going to talk about how the section has to be dealt more liberally in order to like achieve what like the other section is trying to achieve. Now let's talk about कि Supreme Court ने क्या क्या किया है. पहले एक डेटा है, so like keep this data with you, you can quote it anywhere, is that dowry account for nearly 40 to 50% of homicides in the country, like due to like a dowry nearly. And there was a famous example recently, like there was like a viral video of Muslim girl like who committed suicide. So like there is a possibility that question like this can be asked in your mains exam, and even in your mains the question is not asked. The leverage that you have is कि आप अपने आप आंसर में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो. You can bring an example and you can quote that example. You can even like quote this data as well, like if you're writing essay, and then you can record this example कि dowry account for nearly 40 to 55% of like 40 to 55% of homicides in the country, which is a huge number. Like and the data is from 1990, nearly 2000 to 2018. The 18-year data actually suggesting you the same thing. So court says this we are going to interpret section 304 liberally. अब वो इसको liberal interpretation के बाद exactly कहते क्या हैं? They say कि like पहले तो section 304 को ही पढ़ लेते हैं. Section 304 says that कि a woman should have died from burns other than otherwise than under normal circumstances within 7 years of marriage, and like she should have been harassed soon before the death. तो मतलब ये इसके कुछ वो हैं कि like first of all like section वो बोलता है कि women should have died from the burns, like अगर हम इस section में include करना चाहें.
दूसरा विद इन 7 years of the marriage, थर्ड इज सून बिफोर द डेथ, and chotha is other than like normal circumstances. So so the Supreme Court like takes one each, like takes like 2-3 part of the definition and then interprets liberally. तो पहला पार्ट क्या था इसमें? पहला पार्ट था कि soon before the death. Supreme Court says कि this is the most like part of the definition which is liberally, which is interpreted in most like non-liberal way. It says soon before that का मतलब ये नहीं है कि बढ़ने से 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप उसको टॉर्चर किया गया था. It's like the lifestyle. Maybe like in 2018 she committed suicide. Like 2021 she committed suicide. Then the entire year 2021 she might have been harassed. Like into 2020 even. So she's like the just don't interpret soon before the death. मतलब exactly like before she died उसको harass किया गया था नहीं था. So first thing is this. Second is it raised concern about like जैसे trial are being conducted in which it is trying to maintain a balance. If the right of the woman is protected, at same point of time accused के भी right होते हैं, उसकी भी rights को protect करना है. The court interpretation attempt to protect the accused as well, because it says कि the way the court is examining it should be also fair towards the accused as well, कि मतलब he's examined in a fair way so that उसकी तरफ की कहानी भी सुनी जाए. Okay, so this is like the second part, like जिसने interpret किया है. Third is the court says कि other than normal circumstances, other than normal circumstances मतलब कि अगर homicide हो या फिर अगर suicidal हो या फिर accident हो, मतलब कि these you should not exclude. Even in like dowry related death, even these can happen. कि dowry related death में भी homicide हो सकता है कि somebody has killed her, like she had committed suicide in that case, या फिर accidental creation हो. So this is something the court has talked about. So like now this may not be asked in an exam. This is just I'm examining the court, like this is what been given in the news. What is more important for you is to remember the various section related to dowry death. So like remember these section because आप इनको quote कर सकते हैं and like these can be asked. आपके PCS एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, जैसे बिहार है, जैसे यूपी है, या फिर MP है, राजस्थान है. I'm sure you must be preparing for that as well, or आप you must be trying to give that exam as well. तो लाइक रिमेंबर कौन कौन से सेक्शंस आर इन दिस. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेक्शन 304 जो कि सबसे पहले लाइक वी टॉक्ड अबाउट दिस कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिबरली इंटरप्रिटेट करने की बात की है, विच इज रिलेटेड टू डाउरी डेथ, जो विच प्रोवाइड द पनिशमेंट ऑफ 7 years इन केस ऑफ डाउरी डेथ. तो लाइक दिस प्रोवाइड द पनिशमेंट ऑफ 7 years. सेकेंड इज सेक्शन 498. तो एक तो आपका सेक्शन 304 है, दूसरा आपका सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी ऑल्सो डील्स विद द like cruelty against women. So cruelty and like harassment, if women suffer from cruelty and harassment, then section 498 of the IPC deals with it. Next is section 313 of the CRPC also deals with अगर उसको miscarriage हो जाए without its consent वगैरह. So this is also related to कि dowry और harassment case में women के साथ ऐसा होता है. So हमने यहाँ पे कौन कौन से 3 सेक्शन देखे, एक तो सेक्शन 304 देखा, एक सेक्शन 498 देखा और एक 313 ऑफ द ICRPC देखा. सेक्शन 304 और 498 आपके IPC प्रोविजंस थे, जबकि सेक्शन 313 आपका CRPC प्रोविजन था. So here we are done with like what the Supreme Court has said. Now let's move ahead. In the next section of social issues, now the government has come up with order कि every children who were beneficiary of the midday meal scheme will get 100 rupees in their account, and that 100 rupees will be transferred, like वो direct benefit transfer होंगे आपके लिए कि like directly they'll be transferred to the account of the parent, and like this was done to safeguard the nutrition level of the kids, like उनका nutrition level protect करने के लिए और उनकी immunity protect करने के लिए, because one thing COVID has made clear, जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है दे वर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और जिसकी इम्यूनिटी इतनी प्रोटेक्टिव नहीं थी लाइक दे बिकम द लाइक विक्टिम ऑफ द COVID-19. सो द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू अचीव दिस, बट देन इट फेस द क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म क्या था, एक वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप हैज क्रिटिसाइज कि आप 100 रुपी पर चाइल्ड दे रहे हो, दैट मीन्स ₹4 a day.
₹4 में आप क्या खरीद सकते हो और बच्चे को क्या देना चाहते हो मंथली पेमेंट में ना। इवन इट वॉज लाइक अगर मंथली पेमेंट भी दे रहे हो ना तो भी ₹4 पर डे है। आप ₹4 में क्या बच्चा खरीद सकता है कि उसकी मतलब रिक्वायरमेंट फुल। पार्ले जी की पैकेट भी नहीं आती है तो ₹4 की, मतलब चलो ठीक है वही आ सकती है, और उसमें अगर बच्चे का पेट भर सकता है देन इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सोसाइटी आर सेइंग कि अमाउंट इज रियली लेस and this is not going to satisfy the needs of the nutrition needs of the kids. And then it suggested कि instead of that आप टेक होम राशंस प्रोवाइड करो ना उनको, कि एग ले आ सकते हैं, वेजिटेबल्स लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, और गवर्नमेंट अपने प्रीवियस ईयर एरियर्स भी ट्रांसफर करे, कि गवर्नमेंट को अब होश आया है कि बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल सेटिस्फाई होने चाहिए, उनको पैसे मिलने चाहिए, बट प्रीवियसली बहुत टाइम से उनके पास नहीं जा रहा है, तो गवर्नमेंट को वो भी उनको देना चाहिए। Now, this is something आप अपने एग्जाम्पल्स वगैरह में लिख सकते हैं, बट फ्रॉम पीटी एंड मेन्स परस्पेक्टिव लाइक दिस कैन बी आस्क्ड, बिकॉज जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं दीज कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एनी टाइम, लाइक कभी लॉन्च की हो पर आप पूछ लिया बिकॉज न्यूज़ में थी। इनफैक्ट पीसीएस एग्जाम्स तो आर वेरी लाइक फेमस फॉर दिस, कि वो फ्लैगशिप स्कीम्स को पूछ लेते हैं लॉन्च, चाहे वो कहीं भी कभी भी क्यों ना हुई हो। सो मूविंग अहेड, लेट्स गेट टू नो अबाउट व्हाट इज मिड डे मील स्कीम। सो मिड डे मील स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लाइब्रेरी के अंदर आती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइक स्कूल और एजुकेशन के अंदर आती है, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1995 में लॉन्च हुई थी। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी प्लेस विद डेट्स इन व्हेन इट आस्क यू द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ना, तो डेट्स के साथ प्ले करती है ये, कि 1995 में लॉन्च हुई, 1996 लिख दिया या कुछ और लिख दिया। सो रिमेंबर दिस वाज लॉन्च्ड इन 1995 और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब क्या होता है? एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें इंटायर जो फंडिंग होती है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन होता है। मे बी सेंटर आपका 60% जो बजट पे कर रही हो और रेस्ट 40% आपका स्टेट पे कर रही हो। अगर हिली एरियाज में तो मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे कर रही हो और 10% आपकी स्टेट पे कर रही हो, तो उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, जहाँ पे फंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है? द इंटायर बजट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। सो दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में रेवेन्यू, सो नॉट रेवेन्यू बट जो बजट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज, अब ये व्हाट इट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड, it attempt to provide a home, like a hot cooked meal to every child studying in government aided or government school from class 1 to 8। तो कोई भी अगर क्लास 1 to 8 का कोई बच्चा है जो कि मतलब इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, इन एज ग्रुप ऑफ एज भी है और क्लास भी है, ध्यान रखिए दोनों यहाँ पे बता रखे हैं कि एज आपकी 6 to 14 है, आपकी क्लास 1 to 8 है, और वो किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में अगर वो इनरोल है तो उसको हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो दिस इज व्हाट लाइक मिड डे मील स्कीम अटेम्प्ट टू प्रोवाइड। अभी क्यों आई थी? इससे मतलब इसके 2-3 एम थे। पहले तो बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल इससे फुलफिल होता था, दूसरा इससे एक कम्युनिटी फीलिंग आती थी कि बच्चे आपस में एक साथ बैठ के खा रहे हैं, जिससे कास्ट, रिलीजन, इस तरीके के डिफरेंसेस थोड़े से कम हो जाते थे, बिकॉज पीपल ऑफ ऑल कास्ट विल सिट टुगेदर एंड ईट टुगेदर। सो देन स्कूल विल बी अ प्लेस जहाँ पे इस तरीके की जो फ्रेगमेंटिंग या डिवाइडिंग फीलिंग्स हैं वो बच्चों के बीच में नहीं आती। सो दिस वॉज लाइक अटेम्प्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी को थोड़ा सा एड्रेस करना, थोड़ा बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल पे काम करना, और थोड़ा सा उनके कास्ट और रिलीजियस डिफरेंसेस को कम करके एक कम्युनल सॉलिडारिटी लेकर आना। सो दिस वॉज अ वेरी गुड अटेम्प्ट ऑफ द मिड डे मील स्कीम। सो ओके, सो दिस इज व्हाट वी रिमेंबर दैट। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, जीएस पेपर 2 में भी लिख सकते हैं, और इवन अपने और भी एग्जाम से पेपर 4 में भी लिख सकते हैं, और आपके पीटी में इजीली क्वेश्चंस लाइक दिस कैन बी आस्क्ड। सो स्कीम्स अब ये आपका यहाँ पे, और दूसरा नाउ जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट आर द वेरियस एक्ट दैट डील्स विद इट।
तो पहला, इट इज अंडर द सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी इसको सपोर्ट मिलता है, एंड नॉट जस्ट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, मदरसा एंड मकतब्स भी इसके अंदर क्लियर होते हैं. सो दीज आर लाइक इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मदरसा एंड मकतब्स. तो लाइक ये इसके अंदर कवर होते हैं. दिस इज लाइक ऑल्सो यू रिमेंबर, क्योंकि अक्सर पीटी में इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, एंड यू माइट बी थिंकिंग कि ओ लाइक क्या ये भी इसके अंदर कवर्ड है, नहीं है. यस, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस एक्ट. नेक्स्ट इज इवन the like नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2030, उसके अंदर भी इसको मेंशन किया गया है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टॉक्ड अबाउट हाउ इन मिड डे मील स्कीम दिस अमाउंट ऑफ लाइक फूड इज टू बी प्रोवाइडेड टू अ चिल्ड्रन. Second, even it like आपका जो right to free education act of like 2009 है, even that deals with the midday meal scheme. Act says कि एक school management committee होनी चाहिए. There has to be school management committee to actually see the proper implementation of midday meal scheme. So like what are the various act? पहले तो आपका National Food Security Act भी डील करता है इससे, आपका Right to Education Act भी डील करता है इससे, इनफैक्ट आपकी सर्व शिक्षा अभियान स्कीम भी इससे डील करती है. सो दिस इज लाइक आप होलिस्टिकली मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाता है. नाउ लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लाइक गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ इस वीडियो को थोड़ा पॉज करें, और पॉज करने के बाद थोड़ा सोच, लाइक थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड आफ्टर दिस लाइक आई विल गिव यू द आंसर कि कैसे लाइक यू विल हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप like you have done with this. Now let's read the question. Consider the following statement about midday meal scheme. अब इसमें क्या है, द फर्स्ट इज कि इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2015. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी. नाउ इट इज डेल्ट, तो मतलब कि पहली बात लाइक डिड यू लाइक वी रिमेंबर कि ये 2015 में नहीं, ये 1995 में लॉन्च की गई थी. तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो है, बट ये 90 लाइक योर स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग फ्रॉम हियर इटसेल्फ. और जब आप स्टेटमेंट 1 को गलत करना शुरू करेंगे ना, लाइक ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर 2 and 4 पे पहुंच जाएंगे, राइट? तो लाइक आंसर इज 2 and 4, बट लाइक वी हैव टू अश्योर आवरसेल्फ कि लाइक इज दिस राइट और रॉन्ग. तो नेक्स्ट इज इट इज डेल्ट इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो लाइक वी नो दैट कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी इसको डील किया गया है. सेकेंड इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2019 फर्स्ट डेल्ट विद मिड डे मील स्कीम. So like we have read this कि national, but like statement 3 is not there in the answer D. Then like how is it कि ये भी गलत हो रहा है? Now just read the statement carefully. First deal with, this was not the first act to deal with the midday meal scheme. ये तो 1995 में ही launch हो गई थी. So this is how the statement is wrong. तो statement 3 भी आपकी कट जाती है. अब आते हैं statement 4 पे. It provides that every child within age group of 6 to 14 years studying in class 1 to 8 enrolled and attend the school shall be provided with home cooked hot cooked meal. This statement is right. हमने यही पढ़ा था, एज ग्रुप आपका 6 to 14 है और आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 to 8 है. That means the statement is right. And with just this act itself, we can correct that, you know, the statement like the option D is right. Okay, so like from here we have understood the midday meal scheme in detail. Now let's move ahead. Moving ahead is the economic news. In the economic news, like there was this news कि the job crisis has worsened to the level कि आपका unemployment level 9.8% हो चुका है, which is very worrisome because even in last lockdown आपका 6 to 7% के आसपास ही रहा था, जिसने बहुत ज़्यादा unemployment create की थी. अब आपका 9.8% चल रहा है, like which is something anybody should be worried about. So अब इसमें क्या है, तो it's like कि and it provide the solution as well. The article like this says कि you have to vaccinate the large population. This is the only solution. Otherwise you wouldn't be able to deal with this in a holistic manner. So like it says कि आपको vaccination करने की ज़रूरत है. Next article also says कि how कि demand shock बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे कि jobs आपकी कम हो रही हैं and unemployment बढ़ रहा है. अब इसको बहुत अच्छे से एक ना साइक्लिक मैनर में आप समझ सकते हो कि जब भी इकोनॉमी में ना डिमांड कम होती है, अब डिमांड कम होगी तो लाइक अगर बाय द वे मैं बिस्किट बेच रही हूँ और मार्केट में कोई बिस्किट खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, तो मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाती थोड़ा ना रहूँगी, मैंने प्रोडक्शन भी कम कर दे रहूँगी क्योंकि मेरे बिस्किट बर्बाद हो रहे हैं. तो क्या होगा, जब डिमांड कम होती है तो आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, राइट? सो पहले आपका डिमांड कम हुई,
डिमांड कम हुई तो आपका प्रोडक्शन कम हो गया, और प्रोडक्शन कम होती है तो अब उससे क्या होगा, अगर बाद में प्रोड्यूस ही कम करे तो मुझे लेबर कम चाहिए ना, लेबर कम होगी तो मैं लेबर को फायर करना शुरू करूंगी, और जब लेबर फायर होगी तो आपका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो डिमांड कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो ओवरऑल, अब बाय द वे पर्सन इज बीइंग फायर्ड तो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी तो कम हो जाएगी ना, वो खरीद नहीं सकता तो फर्दर डिमांड कम हो जाती है। सो दिस इज लाइक अ विशियस साइकिल। इस विशियस साइकिल को आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके बारे में इवन इकोनॉमिक सर्वे मेंशन्ड अबाउट, राइट ना। सो दिस इज लाइक अ विशियस साइकिल, जो आप किसी भी डायग्राम में मेंशन कर सकते हो कि हाउ द गवर्नमेंट इज सपोज टू एड्रेस द लो डिमांड। तो इसीलिए वेरियस इकोनॉमिस्ट आर टॉकिंग अबाउट कि यू हैव टू गिव मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल, किसी भी तरीके से, चाहे आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो या नरेगा को यूज करो, पर आप लोगों के हाथ में पैसे प्रोवाइड सप्लाई करो, जिससे कि उनकी जो डिमांड सप्लाई है वो आपकी मैनेज हो सके। Okay, so like this is with this like economic section is still. Now let's talk about international relationship. In international relationship, like India is watching Sri Lanka's port city, like India's FDI in port city. अब इस न्यूज में क्या हुआ था कि लाइक इवन लाइक सम डेज अगो दिस वाज अ न्यूज एंड लाइक उसमें भी आई टॉक्ड अबाउट इन डिटेल कि क्या है। अब हो क्या रहा है, श्रीलंका हैज एक्चुअली पास्ड अ कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट, कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट। आप इसको मीन्स एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि इससे हमारे नेबरहुड में चाइना इज एक्चुअली मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड लाइक वी आर लूजिंग अ नेबर इन दिस प्रोसेस। तो दिस इज लाइक कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन एक्ट में चाइना लाइक श्रीलंका इज बिल्डिंग अ पोर्ट सिटी विद द हेल्प ऑफ चाइना इसमें $1.4 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। एंड व्हाट श्रीलंका इज सेइंग, इन दिस प्रोसेस 83,000 जॉब क्रिएट होंगे, $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ये बहुत ही बिग टिकट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है। बट वाई इंडिया इज वरिड बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। तो दिस इज लाइक एंड इंडिया इज ऑल्सो वरिड बिकॉज लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी टैक्स हेवन, कि यहाँ पे ना श्रीलंका बहुत कम टैक्स लगाएगा, और टैक्स हेवन कंट्रीज में क्या होता है, टैक्स बहुत कम होता है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग ब्लैक मनी को फंड कर रीरूट करने के लिए, वाइट करने के लिए ऐसी कंट्रीज में जाके भेज देते हैं, और वहाँ से वापस अपनी कंट्री में FDI के फॉर्म में लेकर आते हैं। सो इट प्रमोट्स दी ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करता है ये। तो पहले तो ये ब्लैक टैक्स हेवन प्रमोट करेगा, तो हमारे पहला कंसर्न तो यही है कि एक टैक्स हेवन आ रहा है। दूसरा हमारा कंसर्न ये है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे वी आर लूजिंग द स्ट्रेटेजिक एज इन आर लाइक नेबरहुड, हमारी नेबरहुड कंट्रीज चाइना को फेवर कर रही हैं, एंड चाइना इज बिकमिंग अ बिग पावर, जिसके साथ हमारे डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे डोकलम इशू हुआ, उसके बाद हमारा जहाँ पे दौलत बेग ओल्डी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल होने के बाद कैसे लद्दाख में जो इशू क्रिएट हुआ, ऐसे बहुत सारे। थर्ड इज लाइक दिस इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक लाइक पोजीशन फॉर इंडिया, मतलब आपका श्रीलंका आपका इंडियन ओशियन में लोकेटेड है यहाँ पे, और लाइक इंडिया 1/3 या फिर वर्ल्ड का 1/3 ट्रेड आपका इस रूट से पास होता है। अगर चाइना यहाँ पे अपनी हेजमनी बना लेता है तो हमारा जो ट्रेड है, जो 90% बाय वॉल्यूम आपका बाय सी होता है, वो हमारा इम्पैक्ट हो सकता है इस तरीके से। सो दिस इज लाइक इवन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। तो पहला क्या है, वी आर नॉट हैप्पी कि पहली बात तो यहाँ पे टैक्स हेवन बन रहे हैं, जिससे ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट होती है। दूसरा चाइना की एज बढ़ रही है इसमें। तीसरा हम एक स्ट्रेटेजिकली लाइक इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लूज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट हैप्पी इसके बाद जो बनने वाला है, राइट। So moving ahead, like further in the news was कि China has become a top lender to Sri Lanka, like nearly $1 billion loan provide किया है, $1.5 billion swap facilities में क्या होता है, अगर by the way दो countries हैं, ये डॉलर में डील करती है और मे बी हम रुपी में डील करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर इतना अमाउंट स्वैप फैसिलिटीज हो जाता है कि इंडिया को अगर डॉलर की जरूरत पड़ी तो उस केस में क्या होगा, ये इतने डॉलर इंडिया को सप्लाई करेगा और इंडिया इन रिटर्न उसको इतना रुपी सप्लाई करेगा। मतलब इसमें क्या हो गया कि हम मतलब खरीदी बेची नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये हमने पहले ही डील कर लिया कि इतना तो मतलब विदाउट एनी कंडीशन इतना स्वैप हो ही जाएगा कि $20 बिलियन आप सप्लाई करोगे और हम उतने ही मतलब नॉट 20 बिलियन रुपीज बिकॉज उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट में भी 1 लाख रुपीज़ हम प्रोवाइड कर 1 लाख लाइक बिलियन रुपीज़ हम आपको सप्लाई करेंगे इन एक्सचेंज रेट। तो इनको स्वैप फैसिलिटीज़ कहते हैं।
तो दिस इज लाइक इंडिया इज वरीड अबाउट कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बढ़ रही है. इनफैक्ट 1 बिलियन हाईवे प्रोजेक्ट भी ऑन BOT बेसिस, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस, आपका चाइना में लाइक इन श्रीलंका चाइना इज बिल्डिंग. सो दिस इज समथिंग लाइक वरीसम फॉर इंडिया. और आप इसको मीन्स के एग्जाम्पल में, आप जब IR के स्टूडेंट, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप जिसके भी हो, यू कैन राइट इन दिस. Now next is Syria's president Bashar al-Assad has been re-elected with the 95% of vote. Now this is not going to be asked in your mains exam, और आप इसको कहीं लिखने वाले भी नहीं हो. But in PCS exam, the question like this are being asked. This person was in news. He is the president of which country, or he is the prime minister of which country? So like if a person is in news, you are supposed to know about this because PCS exams में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. तो like Bashar al-Assad is being re-elected as a president of Syria. So like this is something you're supposed to remember, and this will help you in like cracking the like PCS exams. So and with this we're done with today's news. Thank you so much for staying with me. So stay at home, stay healthy, and stay safe, and stay connected to AQ by AS.